آج کا جو ٹاپک ہے وہ اس وقت جو شہر میں صورتحال چل رہی ہے، شہر کا لگتا یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ ہم سب کی کراچی کے شہری ہونے کے ناطے یہ خواہش ہے کہ کراچی صاف ستھرا نظر آئے، کراچی صاف ستھرا ہو، کراچی کا ایک جو امیج ہے دوسروں کے سامنے وہ ایک صاف ستھرا سٹی کے طور پہ جائے، یہاں کے لوگوں کو کچھ آسانیاں ہوں، سڑکیں صاف ہوں، گلیاں صاف ہوں۔ جو ہمارے یہاں گاربیج پروڈیوس ہو رہا ہے وہ کوئی 12 سے 14 ٹن کے قریب کلیم کیا جاتا ہے۔ آج کے اس اہم ٹاپک پہ ہم ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بات کرتے ہیں۔ کنسرن جو ہے وہ ہمارے آج جو ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں آصف اکرام صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے، وہ ہمارے درمیان ہیں۔ آج اس ایشو پہ بات کریں گے کہ شہر میں کیا صورتحال ہے، کس حد تک ان کی کوششیں کامیاب ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، اور ٹارگٹ کیا ہے، اور ہم جو سٹیزن ہیں، سول سوسائٹی ہیں، ہمارا کیا رول اس میں وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں۔ تو اس سارے ایشو کے اوپر ہم نے آج بات کرنے کے لیے دعوت دی محترم جناب آصف اکرام صاحب کو، اور ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا۔ شہر میں آج چونکہ میچ بھی ہو رہا ہے، کچھ اور بھی بارش کی کچھ خبریں ہیں، اس کے باوجود وہ آئے۔ آصف صاحب ہم آپ سے انتہائی مشکور ہیں، اور اربن ریسورس سینٹر ان شہر کے ایشوز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ یہ نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، اور 92 سے ہمارے پاس اربن ایشوز پہ جتنی رپورٹیں ہیں، جتنے پریس کلپنگ ہیں، وہ سب ہمارے لائبریری میں ہیں۔ اسٹوڈنٹ جرنلسٹ یو آر سی کے ان انفارمیشن کو یوز کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی جو آپ کی ٹاک ہے، جو آپ کی لوگوں سے بات چیت ہے، وہ فیوچر میں ہمارے جو طالب علم ہیں جب وہ اپنے کسی تھیسس کے لیے آئیں گے، اس شہر کے لیے صحافیوں کے کام آئے گی۔ تو میں محترم جناب آصف اکرام صاحب کو دعوت دیتا ہوں، ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ بورڈ مینجمنٹ بورڈ، کہ وہ آئے اپنے قیمتی تعداد سے نمائیں۔ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس ادارے کا وجود 2014 میں آیا، اس سے پہلے اگر آپ ماضی کی بات کریں تو اس سے پہلے آپ کی جو ڈی ایم سی ہوا کرتی تھی، دیگر ادارے ہوا کرتے تھے، وہ آپ کے سالڈ ویسٹ کو ڈیل کیا ہے۔ اور جب ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے جو بھی آپ کا گاربیج پروڈیوس ہو رہا ہے اس شہر کراچی میں، جس کے مختلف لوگ اندازہ لگاتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ 12 سے 14 ہزار ٹن اس شہر کراچی میں جو کچرا جو پروڈیوس ہو رہا ہے، اور جو آپ کی ایسٹیمیٹڈ آبادی کا ہم تعین کرتے ہیں یا اندازہ لگاتے ہیں کہ آبادی جو سب سے ڈیڑھ ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں جائے، آپ تمام کراچی شہر سے متصل جو آپ کے مضافات کو ایڈ کریں، کراچی کی آبادی سے بہت زیادہ ہے۔ اسی حوالے سے جب کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے، اسی حوالے سے جو تقریباً ہے یا اندازہ ہے جو ہم لگاتے ہیں کچرے کا، وہ شاید 14,000 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ کچھ ایسٹیمیشن ایسی بھی ہے کہ تقریباً 14 سے 18,000 درمیان آپ کا جو ہے
सेकेंडली जो हमारी लैंडफिल साइट कहलाती है, वो जगह जहाँ पे इस गार्बेज को हम जाके डंप करते हैं और यहाँ पे उसको देखते हैं, स्टोर करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से ज़्यादा, क्योंकि ये वो इदारा है जो कानून साजी के बाद 2014 में वजूद में आया और उसके तहत उसको मैंडेट दिया गया कि आप इस इदारे का काम है कि वो जितने भी सॉलिड वेस्ट के हवाले से इशूज हैं उसको डील करें। अब हमारे शहर के अगर हम एक हल्का सा एक जायजा लें इस पूरे प्रोसेस का, खास कर कचरे को बनाने का इसको प्रोसेस करने का, तो उसमें अंग्रेजी में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम फ्रंट एंड कलेक्शन। फ्रंट एंड कलेक्शन ये होता है कि आप घरों से डोर टू डोर किया जाता है। बाहर के मुल्कों में जनाब अगर वो फ्लैट्स होते हैं, जो घर होते हैं, मशीन आती है, तो वहाँ पे हर घर को आपने एक डब्बा दिया होता है, एक हरे रंग का होता है और एक पीले रंग का। और उसको देने की वजह ये होती है कि जनाब आपका ग्रीन वेस्ट, जो आप घर में बहुत सारी चीज़ें खाने के इस्तेमाल करते हैं, वेस्ट है, खाने का खर्चा है, खर्चा है, और उसके बाद आपका जो प्लास्टिक है या शीशा है या तार है, कोई और चीज़ है या उससे मुतसिल कोई और आइटम है, उसको दूसरे डब्बे में डालते हैं। पहले उसको डालते हैं, उसके बाद एक दिन मुअय्यन होता है जिसमें वो गाड़ी आती है, आप रोड वाले और वो उसको उठा के ले जाती है। कॉम्पैक्टर होता है, कॉम्पैक्टर उसको आपको कहते हैं जो कचरा उठाता है, उसके बाद उसको प्रेस करके दबाता है ताकि उसमें खास नहीं जा जाए। और उसके बाद वो कचरा जो है वहाँ पे बैरून मुल्क में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन होते हैं जहाँ पे उसको प्रोसेस करते हैं, फिर लैंडफिल साइट में जाते हैं। हमारे मुल्क में पहला कलेक्शन वो होता है जिसको हम आसान लफ्ज़ों में कहें कि हमारे घर में आपने देखा हमारे बच्चे आते हैं और वो आपसे गार्बेज कलेक्ट करते हैं, उसको लिखाते हैं। उठाने के बाद फिर जो नज़दीक तरीन कचरा कुंडी होती है या डेजिग्नेटेड प्लेस होती है जहाँ पे उसको फेंका जाता है और फेंकते हैं उसको। लेकिन फेंकने से पहले जो एक काम है जो वो करते हैं, हमारा फ्रंट कलेक्शन होता है जिसमें हमारी बच्चे उसको चुनते हैं, चुन के उसको कचरा कुंडी में ले जाते हैं। लेकिन मसला क्या होता है, जब वो कचरा कुंडी में पहुंचते हैं तो उस पर डंप करने से पहले वो उसमें से कचरे को कलेक्ट करते हैं, जिसको अंग्रेजी ज़बान में उसको स्कैवेंजिंग कहते हैं। कि उसको जो वैल्यूबल्स होते हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, चाहे शीशा है, चाहे वो लोहा है, चाहे वो प्लास्टिक है, चाहे वो गत्ता है, चाहे बॉटल्स हैं, उसको चुन लेते हैं। उसके दो नुकसान होते हैं, एक तो कचरे के अंदर वैल्यूबल आइटम निकल जाता है, पहली बात। ये वो चीज़ें हैं जिसको आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं, जिससे आप एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी का इस्तेमाल होता है, इससे एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो बिजली बन सकती है, मीथेन का भी एक पॉजिटिव भी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। दूसरी बात, वो कचरा जब चुनता है तो कचरा चुनने के बाद उसको नीचे फेंक के आगे चला जाता है। तो ये कहलाता है फ्रंट एंड कलेक्शन। जो आप उसको लेकर करते हैं कि कंपनी के थ्रू भी होता है। हमारे लोकल सेटअप में आपको मोस्टली बुलाएंगे जैसी कंपनी से काम करेंगे, नींद से यहाँ पे उसको कलेक्ट करके मार देते हैं। फिर उस कचरा कुंडी से वो कचरा कुंडी सेकंड स्टेज पे जाता है जहाँ आपके गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, जिसमें हमारे पास कराची के अंदर एक गोभी बैग का आपने नाम सुना होगा, वेरी स्टेज पे आप लग जाए साथ में वो है। फिर आपका शराफी है, मरीज और संगत पे शराफी है, वहाँ पे रोड पे वहाँ जाता है। EVM कॉस्ट पे है जो आप एक और GPS से करोगे। फिर बाकी आपकी दीगर कचरा कुंडी है जहाँ वो चीज़ें जाती हैं और वहाँ पे जो कचरा डंप हो, कचरा कुंडी का वहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट जो DMCs के कंट्रोल में हो, और जहाँ पे आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रहा है, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट में 4 में काम कर रहा है या 3 में काम कर रहा है, वो उसकी कंपनीज के जो सबलेटेड कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसको उठा के इस कचरे को ले जाते हैं लैंडफिल साइट पे। कराची के अंदर जो है वो 2 लैंडफिल साइट है, एक सुरजाली में और एक हब में। सुरजाली की जो लैंडफिल साइट है उसका नाम है जाम छापुर और तकरीबन कोई 500 एकड़ मुहित आप एक उस राजी पर रकबे पे ये लैंडफिल साइट है, जिसपे पूरे कराची के कचरे को वहाँ पे खासी मुद्दा वहाँ पे डंप किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे एक और लैंडफिल साइट है जो कि हब में है, जिसको गॉन्ड पास कहते हैं।
कौन पास है ना, ये भी तकरीबन कोई 500 एकड़ रकबे जो भीड़ है, बड़ी अराजी है जहाँ पे इसको डंप किया है। लेकिन जो भी डंपर से कचरा उठ के जाता है शहर की किसी भी हिस्से से, चाहे कचरा मंडी से डालें जहाँ पे बड़े डंपर पास थे, और जहाँ पे GTS आपके गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है, जब कचरा वहाँ से उठा के उसको लेके जाते हैं, तो जब वो लैंडफिल साइड पहुँचता है तो वहाँ पे वे ब्रिज लगे। वे ब्रिज जो होता है वो ब्रिज, वो पुल जिसमें जब गाड़ी खड़ी होती है तो उसका वजन किया जाए, ताकि हमें एक अंदाजा हो सके कि हमारे पास जो है जो डंपर में, ट्रक में, चाहे वो 12 व्हीलर है, चाहे वो 10 व्हीलर है, चाहे उससे कम व्हीलर है छोटा वाला, कि जो वहाँ पे वजन जो ट्रक है उसके अंदर कितना टन जो है वो वजन मौजूद था कचरे, ताकि उसके मुताबिक एस्टिमेट किया जाता है कि आज कराची में तकरीबन कितना कचरा उठ के वहाँ चला गया। मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज़ साथ बताना चलूँगा कि जब हम बात करते हैं कराची के कचरे के हवाले से, तो तकरीबन हमारे पास जो रोज़ कचरा उठ के वो जाता है दोनों लैंडफिल साइट पे कराची की GTS से या तमाम कचरा टंकियों से उठ के वो जाता है, तो तकरीबन 12 से लेकर 13,000 का एवरेज हमारे पास जो है वो कचरा होता है। अराउंड 12 to 13,000 टन जो कचरा वहाँ पे पहुँचता है। जो मुख्तलिफ BMCs के और दीगर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में कंपनीज काम कर रही है, 3 डिस्ट्रिक्ट में खास मलीर में, ईस्ट में, साउथ में, तो वहाँ पहुँचता है। तो इस तरह से जो कचरे कलेक्शन का आगाज़ होता है फ्रंट एंड से, घरों से, उसके बाद वो पहुँचता है, उसकी दूसरी मंजिलगाह होती है कचरा कुंडी या गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, और उसकी आखिरी आरामगाह जो होती है वो होती है जनाब आपका लैंडफिल साइट, जहाँ पे उसको डंप कर दिया जाता है। अब सिलसिला कुछ इस तरह से है कि जनाब आपको जो भी चीज़ उठानी पड़ती है, लेकिन उसके लिए आपको वसाइल की ज़रूरत है। वसाइल में फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होती है, कितना खास पैसा मौजूद है उस काम में बजट। उसके अलावा आपकी ह्यूमन पावर, आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है, आपके काम करने वाले लोग हैं, उनकी तादाद क्या है। फिर उसके बाद आपको तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो मशीनरी की रिक्वायरमेंट क्या है। लामाना जब आपने कचरे को पिक करना है, तो चाहे आपने मिनी पेपर लेना है, चाहे आपने साइकिल रिक्शा लेना है, चाहे आपने डंपर लेना है, चाहे आपने कॉन्ट्रैक्टर लेना है, चाहे आपने शावर लेना है, चाहे आपने लेड लेना है, चाहे आपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेनी है, मुख्तलिफ तरीक़ों से कचरा कलेक्ट करते हैं। जहाँ पे मेन रोड्स हैं, जहाँ पे डंपर या बड़े ट्रक की एक्सेस आसान है, तो वहाँ पे कचरा जो है वो उठाते हैं लोडर के तहत। और जहाँ आपकी बिल्कुल नैरो किस्म की तंग गलियाँ हैं, तंग गलियों की कोशिश की जाती है कि एक छोटी कोई ऐसा व्हीकल लिया जाए जिसको ट्राई साइकिल, जो आज के जिस तरह चिंची रिक्शा चल रहे हैं, इसी आसपे की ट्राई साइकिल होती है। और इस चीज़ को मैंने 2013 में किया था जब मैं डिप्टी कमिश्नर भी खास था। तो वहाँ पे जो बहुत तंग गलियाँ होती थी, जहाँ पे आपका ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जा सकती थी, तो हमने वहाँ पे चिंची रिक्शा यूज़ किया था कि चिंची रिक्शा के अंदर कचरे को गलियों से निकाला जा सके ताकि वो निकल के बाहर। तो आपकी मुख्तलिफ मशीनरी के शेप्स हैं जिसके ज़रिए से इस कचरे को कलेक्ट किया जाता है। उसको उठा के टुंडियों से, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से फाइनली उसको पहुँचाया जाता है आपका लैंडफिल साइट। अब दो चीज़ें इसमें बड़ी जो बुनियादी ध्यान रखती है कि जब हम कचरे की बात करते हैं तो कचरे के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो सरकारी एतबार से तो आप कर देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी जो कल्चरल पार्ट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जिसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि अगर आप बैतूल पढ़ रहे हैं, जैसे मैं भी ज़माने रहा पढ़ने के लिए गया, वहाँ पर अगर आप टिश्यू पेपर अगर आप नीचे ज़मीन पर फेंक दें तो बोरा आपको कहना कुछ नहीं है, लेकिन आपको किस निगाह से देखना है कि जब आपने कोई बहुत बड़ा जो है वो जुर्म या गुनाह कर दिया, उसके चेहरे पे एक शिकने किसी हद तक नफरत के आसार आते हैं कि काम ये। और कभी ऐसा भी करते हैं कि आपको देखा वो आगे बढ़ते हैं, खुद उठाते हैं और उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। सरकार का काम चीज़ों को उठाना है, फेंक करना, आगे लेके जाना है।
سرکار کس طرح کامیاب ہوگی، کس طرح کامیاب ہوگی، یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا وسائل ہیں افرادی قوت کے حوالے سے، معاشی وسائل کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے. لیکن کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا آپ گھروں میں اگر آپ دیکھیں گے، اگر گھروں میں کوئی بازی کسی معاشی کو کوئی پھیلی دیتی ہے تو کرنے کے بعد ان کے سامنے ڈسٹ بن پڑا ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں ڈسٹ بن پھینکنا پسند نہیں کرتی، اس کو پھینک کے چلے جاتے. اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ پھینکے جاتی ہے تو اسی علاقے میں بلیاں، کوے، چیلیں ہوتے ہیں، پھر وہی اسی تھیلی میں جاتے ہیں، فوڈ آئٹم اسمیل کی وجہ سے کھولتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اور پھر اسپریڈ ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمارے ملک میں کنسٹرکشن ہوتی ہے. روز ابھی ریسنٹلی ہم کیمپین چلا رہے ہیں 3 سال کے اوپر میں 21 تاریخ سے لے کر 15 سے ہو چکے ہیں. ہمارے بہت سے لوگوں سے جس کو ڈیوری کہتے ہیں، اس کو اردو زبان میں ملبہ کہتے ہیں، بہت سے علاقے ایسے جا کے آپ کو کچرا نہیں ملا لیکن ملبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جس میں آپ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی بات کریں تو بھی کیا ہوتا ہے، آپ کنسٹرکشن ہوتی ہے، آپ کی جھوٹ کو ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اس کو اٹھا کے اپنے گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں. اور ایک مرتبہ اگر آپ نے کوئی چیز باہر پھینک دی تو اس کے بعد دوسرا بندہ اس میں تھیلی پھینکتا ہے، تیسرا بندہ اس میں گھر پر پھینکتا ہے، چوتھا بندہ ٹیشو پھینکتا ہے، پانچواں بندہ اس میں کھانے کی چیزیں پھینکتا ہے. آہستہ آہستہ اس کا انبار کرنا شروع ہو جاتا ہے. سرکار کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ڈیزیگنیٹڈ آپ کو کچرا پوری بنا کے دیں، جہاں کو ڈالیں، لیکن آپ جائیں تو اس کی ہم دیکھتے ہیں سویپنگ بھی کرا رہے ہوتے ہیں، میکینکل سویپنگ بھی ہوتی ہے، مینوئل بھی ہوتی ہے، کہیں کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بجائے چیزیں بن پہ ڈلنے کے ہم روڈ پہ جاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، شیشے رچے کرتے ہیں، باٹل کو باہر پھینک دیتے ہیں. یہ بھی سوچتے ہیں کہ باٹل کسی موٹر سائیکل چلانے والے کے وہ رہ سکتی ہے، وہ حادثے کا شکار بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ہم چیزوں کو لٹر کر دیتے ہیں، چیزوں کو پھینک دیتے ہیں. دوسری بات ہے، ابھی ریسنٹلی ابھی جناب میں کل رات کو میں 12 بجے تک فیلڈ پہ تھا، موزے سی ایم صاحب کے ساتھ تھے، تمام منسٹر کے ساتھ تھے. نالوں کی صفائی کی تو نالوں سے ایک بڑی تعداد میں ملبہ نکلا. مطلب بجائے آپ اس کو پراپر جگہ پہ لینڈ سائڈ پہ ڈمپ کرنے کے، آپ کیا کرتے ہیں کہ جناب یہ اٹھایا جس نے کچرے کو، دال کو اور ڈیبرس کو سارے کے سارے کو آپ نے ڈال دیا نالوں پہ. حالانکہ نالے آپ کے چاہے گندے پانی کے چاہے وہ ڈرین کے اسٹرانگ واٹر ڈرینس ہوں، وہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی، اس میں تمام چیزیں آپ ڈال دیں. اس سے کیا ہوتا ہے، پانی کا متاثر ہوتا ہے، پانی کا متاثر ہوتا ہے، پانی بیک مارتا ہے. اگر آپ کا جو گٹر ہے اگر وہ چوک ہو جائے گا تو وہ بیک مارے گا پیچھے کی طرف، پانی پیچھے گٹر سے باہر نکلنا شروع ہوگا. جب آپ اس کو فلو کو ڈسٹورٹ کریں گے تو وہ چیزیں ڈراپ کریں گے. تو کراچی سے حوالے سے بڑا نازک صورتحال میں اسی کو دیکھتے ہوئے پوری کوشش کی گئی. ہمارے گورنمنٹ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی گروپ چلائی، ایک کیمپین چلائی، اس میں تمام ڈپٹی کمشنرز کو بھی شامل کیا گیا، منتوانی کرنے کو بھی انوالو کیا گیا. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ادارے کو اس میں ایکٹیویٹ کیا گیا. وہ ٹوٹلی آپ اپنا کچرا جو کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح سے ہماری ڈمپنگ چل رہی ہے اور جس طرح سے ہم اسٹیٹسٹکس نکالے کہ تقریباً ہمارے پاس جو ہے 16 لاکھ ٹن کا جو ہے وہ بیک لاگ ہے. اور یہ 16 لاکھ ٹن کا بیک لاگ جو ہے یہ کسی کوئی چند ہفتوں کا نہیں ہے، چند مہینوں کا نہیں ہے. یہ بیک لاگ آپ کے پاس تقریباً سالوں کا ہے. جس طرح سے آپ پورے سال کا کھانا ایک وقت میں نہیں کھا سکتے، اسی طرح سے آپ سالوں کی جو لفٹنگ ہے گاربیج کی، وہ اوور نائٹ اس کا ہونا ممکن آپ میں سے. لیکن اس کے لیے ایک واضح پالیسی آپ کو وضع کرنی پڑتی ہے، ایک سسٹینیبل آپ پالیسی پر جا رہے ہیں جس سے آپ چیز کو خود کر سکتے ہیں. تو حکومت اس حوالے سے جو بیک لاگ کریٹ ہوا ہے، اس بیک لاگ کو تقریباً اس 10 دن کی مہم میں تقریباً تمام گلیوں سے، کوچوں سے، کناروں سے جو آپ کے نالے بہ رہے ہیں، جو آپ کے پارکس ہیں، جو آپ کے روڈس پہ ہو رہے ہیں، تقریباً کوئی 100 سے 1.5 لاکھ کا وہاں سے کھلا کیے گئے. اب تک جو سپتمبر کے مہینے میں
जो स्टैटिस्टिक्स मेरे पास हैं जो कि लैंडफिल साइट पे जाते हैं, जो वे ब्रिज से गुजरते हैं, टन होता है, तो चलता है कि मैंने तकरीबन 2,57,000 टन, 257,000 टन, 2.5 लाख टन समझ लीजिए, वो जो है लैंडफिल साइट पे। लेकिन गुफ्तगू फिर यही है कि कराची में तकरीबन कोई 12 से 14 में एवरेज कहते हैं, लेकिन 14 से 18,000 टन तक रोज कचरा जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। और लामाला अगर आप उसकी प्रोडक्शन की और उसकी लिफ्टिंग के अगर आप उसके कंपैरिजन्स करें या उसको इवैल्यूएट करें, तो लामाला जितना प्रोड्यूस होता है उतना वहाँ से उठ नहीं पा रहा। और फिर जब आपके पास जो गुजरे सालों को जब बैकलॉग मौजूद है, जब उसको डिग आउट करके बाहर निकालते हैं तो आपका क्वांटम बढ़ जाता है। तो इस सिलसिले में एक बेहतर वयसर अप्रोप्रिएट किसी भी प्लानिंग की जरूरत होती है जिसमें इसको वर्कआउट किया जाए। तो ये आपको मैंने बताया कि ये इस हवाले से अब जहाँ तक सवाल इस चीज़ का है कि हमारे इदारे का है, ये 14 में बना था, इसको पार्लियामेंट के तहत मैंने आपको पहले ही बताया। और दुनिया में क्या होता है कि दुनिया में जितने भी आपका जो सॉलिड वेस्ट है उसको कर्ज नहीं समझते, उसको बल्कि ब्लेसिंग समझा जाता है, उसको आप आज़ाद तस्वुर नहीं करते, उसको आप नेमत के तौर पर लेते हैं, क्योंकि आपके इस वेस्ट के अंदर वो कहते हैं कि कचरा सोना है। इंदौर के अंदर जो है प्लास्टिक से, जो कि अभी मैं बात कर रहे थे, उधर का लैंडफिल साइट थी, तो ज़्यादा बड़ी ही थी, उन्होंने प्लास्टिक से डीजल फॉर्मेशन की, ठीक है, जिसमें बर्न है। इसके अलावा आपकी जब आप कचरा लेते हैं तो उसमें कंपोस्टिंग करते हैं। आपने देखा होगा कचरे के अंदर बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। खासकर अभी मैं परसों में गया होता मलीर के अंदर, मलीर में आपने सुना होगा एक भैंस कॉलोनी, आपने जरूर सुना, जिसको आप कवर कर, जिसको आप जो है वो कैटल के और जानते हैं, बड़ा है वहाँ पे। अब कैटल कॉलोनी में, भैंस कॉलोनी में सबसे ज़्यादा आपका जो काउ डंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसको गोबर कहते हैं ना, और गोबर जो है, काउ डंग जो है, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ द फर्टिलाइजर। तो दुनिया में इस कचरे को डीजल फॉर्मेशन, मीथेन बनाते हैं, उससे रिसाइकलिंग होती है, सॉर्टिंग करते हैं उसको, सॉलिड वेस्ट की टर्म में उसको बर्फिंग कहते हैं, बर्फिंग भी कहते हैं उसको, सॉर्टिंग भी कहते हैं, इसको आम जबान में कहते हैं चीज़ों को अलहदा करना, शीशा अलहदा करना, प्लास्टिक अलहदा करना, और ये कलेक्ट करके उसको आप रिसाइकलिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं। तो दुनिया इस कचरे से वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट से तवानाई जनरेट करती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस चीज़ से एहसास जरूरत है, सिंध में भी, पंजाब में भी, तमाम दीगर सूरों में भी, कि हम इस वेस्ट को एक प्रोडक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करें और उससे एनर्जी की तरफ इम्प्रूव करें। इससे पहले जब आप दुनिया जब ऐसा करती है, यकीनन उसके लिए वो ऐसा कचरा कलेक्ट करती है जिसके अंदर वैल्यूबल्स मौजूद है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि मैं भी कोई तकरीबन कोई 1 हफ्ते पहले लैंडफिल साइट में था, जाम छाकर वाली, जो कि सुरजानी टॉप, और जब मैं ऊपर टॉप पे उस पर गया जहाँ पे डंपिंग हो रही थी सारी की सारी, तो एक लड़का कोई चीज़ें कलेक्ट कर रहा था, थैली दीगर भी थे, प्लास्टिक बॉटल चीज़ें, उसके जब बुलाया, बड़ा सॉफ्ट सा स्टफ था, मैंने बुलाया, मैं कहा इधर आओ, क्या देख रहे हो, क्या कलेक्ट कर रहे हो। तो बड़ी हैरान की बात है, आपका कोई जहन में भी नहीं आएगा, वो लड़का उस कचरे से इंसानी बाल कलेक्ट कर रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि वो इंसानी बाल क्यों कलेक्ट कर रहा है? यही इंसानी बाल है जो कलेक्ट होते हैं, कलेक्ट होने के बाद वॉश होते हैं, वॉश होने के बाद डाई होते हैं, डाई होने के बाद यूरोप के अंदर ये बिकते हैं 1500 से $2000 में। जो आपकी जो मॉडल्स है, खवातीन जो बालों में ऐड ऑन करना होता है, ये बाल वहाँ इस्तेमाल होते हैं। इंडिया में इसकी प्रॉपर इंडस्ट्री है जो कि कलेक्ट करके, बल्कि वो बाल अपने मजहबी अनासर को यूज़ करते हैं कि अगर आप बाल दान करेंगे भगवान खुश होंगे, उस चक्कर में उनको बाल मिलते हैं, वॉश करते हैं, डाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एंड दैट इज सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट के अंदर वो बिकते हैं $1500 से $2000 में। आप सोचें, जिस चीज़ को आप समझते हैं कि ये बाल है, जिसमें हमारे दर्जे में कहा जाता है नाखून और बाल यूज होते हैं, इसको ऐसे कर कोई अच्छा नहीं है बाल, वो उससे जब मेकिंग मनी। फिर आपकी कंपोस्टिंग होती है, आप फर्टिलाइजर क्रिएट करते हैं और उससे आप ऑर्गेनिक भी आप उसमें चीज़ें मौजूद होती है। तो कचरे से आप एनर्जी फॉर्मेशन भी बन जाते हैं, एनर्जी की तरफ मूव कर सकते हैं, कचरे से आप फर्टिलाइजर मेकिंग
दोबारा रिसाइकिल करके दोबारा प्रोडक्शन की साइकिल चलाते हैं. इसके लिए आपको एडवांस यूनिट्स है वो लगानी पड़ती है. मुझे सिर्फ सिलसिले में उन्होंने कुछ मॉडर्नाइज यूज केस के कुछ प्रपोजल बनाए हुए हैं जिसपे कोशिश ये की जाए कि जनाब जो आपका कलेक्ट होता है उससे उनके वैल्यूबल से उसको रिसाइकिल की जाए और वेस्ट टू एनर्जी की तरफ. तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ सिनेरियो. ये कुछ कंट्रोवर्सी थी जो कराची के हवाले से मैंने आपके साथ डिस्कस की जनाब की ये चीज़ें इस तरह की है. ये प्रोसेस है प्रोडक्शन आपकी कचरे की 14 से 12-14 पहले से 18 टन है. बैकलॉग 16 लाख टन का है और फिर 1.5 लाख पर पूरा टन हम बता चुके हैं. बाकी प्रोसेस चल रहा है और यकीनन ये कोई 10 दिन तक 20 दिन तक काम करेंगे क्योंकि जब आप कचरे को पिक कर लेते हैं तो साइमल्टेनियसली आपके पास दोबारा आपकी लेफ्ट साइड हम शाम को जीडीएस को साफ करते हैं तो उसका जीडीएस अगले दिन फिर बन जाता है. तो ये प्रोसेस है, कोई कंटिन्यूस प्रोसेस है. अगर आप थोड़ा सा उसको साइंटिफिक बुनियाद पे लेके जाएंगे चीज़ें बेहतर होती है. इसकी छोटी सी मिसाल दूँ आपको कि कराची में बेइख्तियार मलबा है. मलबे के अभी रिसेंटली कमिश्नर साहब का एक प्रोसीजर आ गया कि जो मलबा फेंकेगा जो पान जो कचरा फेंकेगा उसके खिलाफ वो काबिल नजरअंदाजी अमल होगा. कॉग्निटिव ऑफेंस है उस पर एफआईआर भी लॉन्च होगी. कुछ लोग की एफआईआर लॉन्च भी की कुछ बिल्डिंग से नीचे फेंका कुछ और कचरा फेंका तो उठाएगा मलबे पे भी. अब यही मलबा जो आपके लिए डंप करना एक अजाब है. अगर हम क्लीनिंग हमारे जो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है अगर एक छोटा सा वहाँ पे क्रश का एक प्लांट लगाते हैं तो यही मलबा जो है छोटे ग्रेन्यूल में छोटे टुकड़ों में पत्थरों में कन्वर्ट होता है. जब आप रोड बनाते हैं तो आप देखो रोड़ी डाली जाती है. रोड़ी डालने के बाद उसको रोड़ी के गैप को फिल करने के लिए वहाँ पे रेत और छोटे रोड़ी के जरे डाले जाते हैं. अगर आप इसी क्रश को उसमें इस्तेमाल करें तो ये क्रश जो आपके जो मलबा जो आपके लिए अज़ाब इलाही है आपके लिए मैनेज करना प्रॉब्लम है. आप इससे रोड लेक में इस्तेमाल करके इससे आप रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हैं. तो सवाल ये पैदा होता है कि आप किस किस्म की पॉलिसी लेके आ रहे हैं, किस तरह से वो चीज़ जो आपके लिए मेहनत से एक अज़ाब है उसको आप नेमत में बेहतर चीज़ में कन्वर्ट करते हैं. दैट इज एक्चुअली द पॉलिसी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इस चीज़ को किस तरह से लेके चलती है. इस बारे में अब आपको कोई सवाल करना चाहती हो जी सबको नंबर देंगे और सब बात करेंगे. इसमें ये है कि एक तो बहुत तामुल से इशू के ऊपर बात करनी है. सवाल को पहले सोच लें, बहुत ज़्यादा लंबा सवाल ना हो. एक दो चीज़ें हैं जिनकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा एवरी साहब की कि एक तो ये है कि ये जो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है इनको बनाने के लिए जिस जगह बनाए जाते हैं किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि वहाँ पे सराउंडिंग में, क्योंकि कुछ गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन हैं जैसे नॉर्थ आजमाबाद में है, सब लोग वहाँ पे गए हैं. मुस्तफा कुमार साहब भी गए, रोज फील्ड पे भी आता है वो अफजल शाह स्टेडियम के पास अजाब बना हुआ है नॉर्थ आजमाबाद. इसी तरह धोबी घाट के पास जो आपने कहा वहाँ पे बिल्कुल सामने आबादी है. तो हमने तो सुना था कि गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन जो है वो आबादी के दरमियान नहीं होगा, कोई मुतासर नहीं होगा, आबादी वहाँ पे नहीं होगी, खुली जगह पे होगा कि जहाँ पे गाड़ियाँ आसानी से उसको उठा सकें, उसको ले जा सकें, लोग वहाँ पे एक्सेस कर सकें. लेकिन देखने में ये आया है कि एक तरफ ब्लॉक ए है, एक तरफ ब्लॉक सी है और एक तरफ लो इनकम का इलाका है पहाड़गंज के नाम. वैसे आपको अपना सवाल ही बड़ा लंबा हो गया. चलिए ठीक है जी, आप बाकी को ये बताइए तो ये क्या पॉलिसी है, इसकी तो क्या देखा जा सकता है. देखिए जी, मैं आपको बड़ा मुख्तसर चीज़ करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं. आइडियली जो गुफ्तगू है वो यही है कि आपके जितने कचरा कुंडी ट्रांसलेशन हैं वो आबादी से दूर होनी चाहिए पहली बात. क्योंकि जब आप किसी कचरे को डंप करते हैं तो उसका लामाला उसका सबसे अगर चीज़ जो बुरी आती है सबसे पहले कोई पैक करे ना करे जो उसकी स्मेल होती है. उस वाले जो बैक्टीरिया और डिकम्पोजिशन भी होती है. तो कोशिश ये होती है कि आप स्टेशन वहाँ बनाए जहाँ पे आबादी उससे जो मुसल है उसको तकलीफ. लेकिन कुछ चीज़ें जो एक होते हैं आइडियल सिचुएशन, एक होती है ग्राउंड रियलिटीज.
अगर मैं एक गार्बेज स्टेशन बनाता हूँ और गवर्नमेंट का कलेक्शन मैकेनिज्म अगर वीक है डिस्पैच करने का, डिस्पोज ऑफ करने का, और हमारा कल्चर भी हम कहते हैं चाहते हैं कि हमारे घर के बिल्कुल नीचे जो है डस्टबिन पड़ा हो, हमारी गली के कोने में पड़ा हो, हमें ज़्यादा ट्रैवल न करना पड़े, हमारे डोर टू डोर कलेक्शन हो, ठीक है जी। बाहर के मुल्क में ऐसा नहीं होता, एक अपार्टमेंट है, डब्बे ले लिए, जब गाड़ी आएगी तो गाड़ी आने से पहले डब्बे आपने उसको फुटपाथ पे रख देने। हमारी शान गुस्ताखी भी होती है, कचरा फेंके हम, हमारी माँ से फेंक सकती है, लेकिन हम बहुत बड़े अफसर हैं, बहुत बड़े अजीब लोग हम फेंक कर सोचते हैं। आइडियली उस आबादी से दूर होना चाहिए, लेकिन लामाला अगर आप शहर में रह रहे हैं तो शहर में, अगर आप कराची में रह रहे हैं तो खट्टा के अंदर आप कचरा नहीं लगाएंगे, आपको उसकी वो एक्सेसिबिलिटी भी रखनी है। एक्सेसिबिलिटी इस हवाले से कि जहाँ वो गाड़ी भी पहुँच सके, एक्सेसिबिलिटी इस हवाले से कि उसको गार्बेज अगर घर का भी कोई बंदा जा रहा है तो जाते जाते वो उसमें फेंकता भी जाए। कोशिश ये होती है कि आप जरूर जीटीएस बनाएं, लेकिन जीटीएस आपके अगर आबादी में भी हो तो मसला इतना नहीं है अगर वो आपके कवर्ड है। यूरोप के अंदर जो जब बाहर मुल्क में जीटीएस बनते हैं उनको छत को कवर किया, आपकी गार्बेज की एंट्री होती है, छतें कवर होती हैं, क्योंकि वहां पे जो फ्रंट एंड कलेक्शन है वो प्रॉपर है। यहाँ जो आप कचरा आता है वो कचरे को चीजें होती नहीं है। सबसे पहले तो बाजी घर में वो निकाल लेती है, ये 3 डब्बे वाला आया, ये आधा किलो लोहा है, ये 80 रुपए में बिकेगा, ये 40 रुपए उसके आ रहे हैं, ये बोतलें जा रही है 50 रुपए किलो की, वो देनी है, तो मेन तो आप यहाँ से निकाल लेते हैं। यूरोप ऐसा नहीं होता, अलग चीजें उस तरह से अलग नहीं कर सकते। तो वो जब डंप होता है, जब जीटीएस से पहुंचता है तो वहां पे बेल्ट लगी होती है, जिस तरह जहाज में बैठे ना, ट्रक आता है अनलोड करता है, बेल्ट लगी होती है, इतने बड़े उन्होंने खाने करने होते हैं बड़े से, वो उसको सॉर्टिंग कर रहे होते हैं, शीशा स्लज निकलती है। अगर मैं उस स्लज को मॉडर्नाइज बेल्ट के ऊपर डाल दूं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेल्ट उसी आधे घंटे के अंदर वो बंद हो जाए। अगर चीजों को आपने देखिए, 2 चीज होती है, एक कराते हैं एडॉप्ट, एक कराते हैं एडैप्ट। एडॉप्ट ये होता है चीज भाई बाहर की एज इट इज रख ली, एक होता है चीज नहीं कि उसको अपने माहौल के मुताबिक आपने तब्दील किया अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। डंपिंग स्टेशन जो है खासकर जीटीएस है वो जगह होने चाहिए जहाँ पे आसपास कम से कम आबादी के सवाल से ना हो, घर ना हो, करीब तक हो। लेकिन हुआ क्या, जब कराची बना तो एक छोटी सी पॉपुलेशन थी, चीजें बहुत दूर थी, तो जेल बहुत दूर था। आपने जब घर बनाया तो इस जगह बनाते थे तो बात चीजें जो आपने फैक्ट्रीज बनाई वो बहुत दूर थी। जिस तरह आपका शहर ग्रो करना शुरू किया, वो जो चीज़ों शहर से बहुत दूर थी, ऐसा था वो शहर का सेंटर बन गई। तो आइडियली उसको वहाँ नहीं होना चाहिए जहाँ पे लोग ठीक। आप अपना नाम और अपनी तंजीम का नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अफान है। ये माइक ले। सर मेरा नाम मोहम्मद अफान है। I am still from Germany in sustainable urban engineering and right now I am working in EMC Pakistan environmental consultant. तो सर मेरी 2 सजेशन है, तो जैसे सर अभी बता रहे थे and sir I have also witnessed 5 years there and I have also worked in the city government. सर 2 चीज़ें हैं, एक तो पहली बात जैसे सर ने कहा इंटरनेशनल प्रैक्टिस ये है कि वेस्ट टू लैंडफिल इज करेक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि हम अभी इनिशियल स्टेज में हैं तो हमारा तो एक कंकरेंट ये है कि सिचुएशन यही है, तो इतना क्या करें। तो पहली बात तो ये हो गई कि वेस्ट टू लैंडफिल इज डिस्करेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। हाँ हमारी सिचुएशन ये हम उसको मैनेज करें। नंबर 2 जैसे सर ने कहा कि हम एक 14 से 18,000 टन हम डेली प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जब तक आप रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और इन तीनों में सबसे पहली चीज़ रिड्यूस, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्लस बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप में ये होगा कि कभी भी बर्गर खाना नहीं छोड़ोगे, कभी भी KFC खाना नहीं छोड़ोगे, तो रिड्यूस तो नहीं है, फिर ऐसे ही अन्ना रहता है। चलिए जनरल पब्लिक की बात, तो हम क्या कहते हैं सर, हम हर चीज़ को टॉप डाउन से शुरू करते हैं कि हम मशीनरी पूरी कर लें, रिसोर्स पूरा कर लें, तब हम करेंगे। सर दिस इज नॉट द वे इन केस ऑफ कराची, बिकॉज 1.5 से 2 करोड़ लोगों का शहर ऐसे चल ही नहीं सकता। सोल्यूशन ये है कि आप लोगों को उस चीज़ की पहले अवेयरनेस दें, दैट इज डन इन यूरोप। हम अभी सुन रहे थे कि यूरोप में वो फ्रंट टेक्स कलेक्शन होती है, वो होती है
सर पीपल आर टोटली अवेयर, इवन स्कूल चाइल्ड इज अवेयर। हमारे यहाँ शुक्र है अब माशाल्लाह तो रिसोर्स सेंटर ने ये काम शुरू किया है और सर ने आके थोड़ी बहुत हमें गाइडेंस भी दी है। जब तक हम ये सिचुएशन नहीं पैदा करेंगे, अवेयरनेस नहीं देंगे स्कूल लेवल से, प्राइमरी स्कूल लेवल से लेके, मैं आज बताता हूँ सर, अभी चले जाए NIT कराची यूनिवर्सिटी, आप पूछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। इवन इट वॉज विद मी माई सेल्फ इन जर्मनी एंड आई वॉज फाइंड ऑल्सो। मैंने पहले दिन गए हम लोग, हमने पहले हफ्ते में वो प्याज का कचरा, आलू का कचरा हमने एक ही शॉपर में डाल के बाहर रख दिया। अच्छा, उन्होंने देखा कि यार ये कोई नई आइटम आई है, पता नहीं कहाँ से आई है, डिसएग्रीगेटेड। अच्छा है, प्याज भी इसी में, ऑर्गेनिक भी इसी में, और आपके रैपर्स भी इसी में। आई वॉज फाइंड ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 10,000 रुपीज़ फॉर दैट एक्शन। मुझे पे करने पड़े और आगे से सबक आ गया कि भाई इस शॉपर में ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, इस शॉपर में वो वाला वेस्ट होगा, और वो जो आप बता रहे हैं शीशे की और वो चीज़ें, अभी तक इसमें वही दो चीज़ें कि जब तक जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इदारे हैं, वो अवेयरनेस नहीं देंगे ना सर, हम बेशक जितनी मर्जी में टीम भी लें, हम जितने मर्जी कैपेबल लोग ले हैं, वी विल नॉट बी मैचिंग आवर टीम। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, और ये URC का, सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, सिर्फ EPA का, ये जब तक कोलैबोरेटिव और इंक्लूसिव एफर्ट नहीं होगी, वी विल नॉट गेट इट। हम लोगों ने अपना रोल प्ले किया है हमेशा, और ये चौथा पांचवा फोरम है इस वाले इशू के ऊपर हमारा, और आइंदा भी हम करते रहेंगे। जहाँ भी हमें कहा जाएगा हम ये करेंगे, और आपकी जो तजावीज़ हैं ये वाकई काबिल कदर हैं। देखिए, जिसमें मैं आपको छोटा सा मुख्तज़र, जिस मुल्क से तुम आ रहे हो ना, जर्मनी से, वहाँ वो मुल्क 85% सोलर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अभी बता रहा हूँ कि आप सब बात में the country you're talking about is converted to 85% to neat and clean energy, जिसको अंग्रेजी की ज़बान में हम एक साफ एनर्जी कहते हैं, ग्रीन एनर्जी। इसमें कोई दुराई नहीं है, कोई शक नहीं है कि हमें जो कसरत है, कसरत हमारे मज़हब ने भी कहा गया कि कसरत को अवॉइड करें। जब आप तजावुज़ करते हैं, एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम है। लेकिन हमारी कंज्यूमर सोसाइटी याद रखिए, आपकी मईशत का 67% चलता है सर्विस सेक्टर के ऊपर। एक ज़माना था जो पाकिस्तान अर्न करता था मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, आप मैन्युफैक्चरिंग से आप सर्विसेज सेक्टर पे आ गए, और जो गवर्नमेंट सारी की सारी सर्विस सेक्टर पे आया कि मैन्युफैक्चरिंग बंद करके ग्रोथ में, GDP ग्रोथ में प्रॉब्लम आया। इकोनॉमिक्स से बात नहीं करेंगे, ये बात सही है। आपकी अवेयरनेस, रिसेंटली मुझे आए हुए 8-2 हफ्ते हुए, मुझे इस क्राइसिस के बाद कहा गया कि आप सोचे कि वो करेंगे गाँव। रिसेंटली मैंने अभी एक कैंपेन डिज़ाइन की है बैलेंस के हवाले से, स्कूल के बच्चों के लिए, उनके लिए पूरा मैसेज, जो आपके पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हैं जहाँ पे लोग चलते पैदल के लिए, दफातर के लिए बैलेंस बनाए, और स्ट्रीट्स के साथ साथ कुछ और चीज़ भी डिज़ाइन की, अपनी कंपनी का भी कैब और टी शर्ट के ऑप्शन है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर वहाँ के लोग सिविलाइज है, बाहर के सिविलाइज हम भी हैं, बात पेनल्टी की होती है। आपने जैसे कहा कि जब आपने उस कचरे में वो चीज़ डाली तो आपको फाइन हुआ, आप ठीक हो गए। वैसे आप अल्हम्दुलिल्लाह कभी ठीक नहीं होते। इसी तरह जब मैं बाहर था, एक मतलब मैंने रॉन्ग साइड पे गाड़ी पार्क की, और उस दिन मुझे $74 का फाइन। टीचर्स की साइड पे गाड़ी पार्क कर दी क्योंकि स्टूडेंट की जगह नहीं थी, और उस जमाने में मैं नौकरी कर रहा था, मैं 4 घंटे की नौकरी करके मैं कमाता था कोई $60, और जिस दिन मुझे $75 का फाइन हुआ, मेरी तबीयत माशाल्लाह से साफ हो गई कि आज की दिहाड़ी तो गई। उसके बाद से जनाब मैं आधे घंटे जगह तलाश करता था जहाँ पर मुझे फ्री पार्किंग मिलती 2 घंटे की, यू नॉट पार्क। याद रखिएगा, चीज़ों को ठीक करने में आपके जो पीनलाइजिंग लॉज होते हैं, पेनल्टी वाले बड़े काम आते हैं। अल्लाह ताला ने भी आपको फेयर फैक्टर से गवर्न किया है, ये करोगे तो जन्नत, ये करोगे जहन्नम, चॉइस इज योर्स। लाइफ वाइज जब आप किसी को फाइनेंशियल पेनल्टी लगाते हैं तो उसकी कमर जो है वो, फिर उसके बाद वो शोखियाँ नहीं मारता कि नाम के मैंने सिग्नल तोड़ दिया, मैंने बेल्ट नहीं लगाई, मैंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस कर दिया। बाहर के मुल्क में जाए, अगर आपने बेल्ट नहीं लगाई
परवाह भी नहीं करते, आपको $500 का फाइन, आपके पॉइंट्स कटते हैं, आपका लाइसेंस आखिरकार कैसे हो जाता है, 6 महीने तक आप गाड़ी नहीं चला सकते। जब तक लिटरेंट के ऊपर कानूनी कवानीन नहीं आएंगे, जैसा कमिश्नर ने नोटिफिकेशन किया है कि मलबा डालने वाले पे, कचरा फेंकने वाले पे FIR होगा। उसका फायदा वो जिस दिन मैंने एक बिल्डिंग के ऊपर फेंकने वाले को उसका फाइन करके उसके बाद उस बिल्डिंग से कचरा नीचे दोबारा, ये काम हमें उस दिन वैसे ही करना चाहिए, लेकिन जब हम पे कोई डंडा पड़ता है फिर वो काम करते हैं। अब तो जब उसको पुलिस लेती जाएगी या उसके ऊपर फाइन होगा, वो सोचेगा नहीं ये काम आप ना करें। दूसरी बात, सिर्फ सरकार का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं होना चाहिए, सरकार का मकसद सिखाना भी होना चाहिए। इसके लिए बेहतरीन अमल ये होता है कि आप स्कूल में बच्चों को छोटी उम्र से बहुत सारी चीज़ें हैं, बुजुर्गों की इज्जत करनी है, बुजुर्ग रोड क्रॉस कर रहे हो तो उसकी मदद करनी है, बस में बुजुर्ग आ जाए तो आपने खड़े हो जाना है, ठीक है, आपने कचरे को नहीं फेंकना। ये बुनियादी सिविक सेंस है जो आपकी किताबों का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप इसको एडवोकेसी करेंगे, इसको ट्रेनिंग का पार्ट बनाएंगे और प्रैक्टिकल शासन कवानीन को भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी सूरत बहुत आप पहले सॉरी जरा अपना नाम, अपनी तंजीम का नाम या इलाके का नाम। मेरा नाम है और मेरा काम ईरान फाउंडेशन से ये पाकिस्तान में मैं काफ़ी कंपनी में रहता हूँ। रिसेंटली जब ये अनाउंस किया गया था कि लिटरेट के ऊपर फाइन होगा तो हम लोग बहुत खुश हुए थे, बहुत अच्छा बात है। तो उसकी इत्तला देने के लिए जब मैं एक दफ़ा थाने गया कि जी फलां जगह पे लिटरेट हो रही है, आप इस पर कार्रवाई कर दें, तो ऑफिसर ने मुझे कहा कि भाई साहब अपना काम करो, वो आदमी कचरा बाहर नहीं फेंके तो कहाँ फेंके। बहुत अफसोस हुआ, सुन के वापस आया, SSP कुरंगी को भी इन्फॉर्म किया, उससे भी निगलेक्ट किया, फेसबुक पे भी इस चीज़ को डाला, यहाँ पर करते दिल वाले लोग होंगे लाजमी को शेयर करके इसको हाईलाइट करेंगे। कटे नजर इस चीज़ के सर आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को डील कर रहे हैं, डेफिनेटली यू विल बी अवेयर फ्रॉम द नैनो टेक्नोलॉजी। सर आपके डिपार्टमेंट में इसकी एक प्रपोजल सबमिट की थी, उसको 2-3 साल हो गए और बहुत सोच के हैरत होती है कि इतनी वाजिब बड़ी चीज़ को निगलेक्ट आपके डिपार्टमेंट ने क्यों किया। थैंक यू। देखिए जी, आपके जो सवाल का पहला हिस्सा है, पहला उसमें मैं आपको जवाब देंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो चीज़ों की कल्चर होती है, ठीक है। जिस तरह हमारा कचरा फेंकने का कल्चर एस्टैब्लिश है, उठाया और फेंक दिया। और जब भी आप कोई चेंज या तब्दीली लेके आते हैं तो उस चेंज में हमेशा रेजिलियंस होती है, जिसको आप एहतजाज कह रहे हैं, जिसको निज़ामत कह रहे हैं, जिसकी नबी कह रहे हैं। जब भी आप किसी चीज़ का आगाज़ करते हैं तो लोग कुछ आपको बता भी उड़ाते हैं। पुलिस वाले ने आपको शुक्र है बहुत सी बात नहीं है, दुनिया क्या हो गया, कचरे पे आया मैं फालतू बैठा हुआ, शुक्र से तो भी लेकिन तो कहते हैं क्योंकि अभी तक वो एज अ कॉग्निटिव ऑफेंस नहीं आया। कवानीन, गुफ्तगू, तमाम चीज़ें वक्त देते हैं चीज़ को इम्प्लीमेंट होने, लेकिन ये उस वक्त होता है जब आप इसको अखबारों के ज़रिए, TV के ज़रिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कवानीन के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता जब इसका निफाज होगा तो फिर कोई पुलिस वाला जो आपको आज कह रहा है कि ये होता तो उस तक वो उठ के अपना बदला पालन करे और आपके साथ रिव्यू करेगा। लेकिन इन चीज़ों में वक्त है। कल्चर को चेंज होने में हम अभी भी चीज़ों को उठा के फेंक देते हैं, अभी भी चीज़ें थ्रो कर देते हैं, हम ये नहीं देखते कि पीछे कोई आ रहा है। कल्चर को चेंज में थोड़ा सा वक्त है। जहाँ तक चीज़ों की है, मैं बाजी में क्या वो मैं उससे कोई कॉमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरी कोशिश होगी, मेरे साथ इस वक्त नवाज साहब बैठे हुए और अभी हम अपना जो सॉलिड मैनेजमेंट की लेफ्ट हैंड साइड है, अभी सॉफ्टवेयर में एक गैजेट है जो कि मेरे पास लेके आए, उसका हमने कुछ चीज़ों को अपनी मॉनिटर करने की कोशिश करें। अभी भी हमारे पास सेंसर सिस्टम है। आपको बताऊँ जो सिक्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डब्बे लगे हुए जो आपको नजर आते हैं, उन सब डब्बों में सेंसर लगा हुआ है और वो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है। सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड इस तरह से है, इन द सेंस कि जब मूवमेंट करते हैं तो हम उसको अपने सॉफ्टवेयर में उन ट्रकों की मूवमेंट चेक करते हैं। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट बलीर में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में और डिस्ट्रिक्ट साउथ में हमारी रियल टाइम मॉनिटरिंग है। जब हम वॉच कर रहे होते हैं कि इस वक्त ये गाड़ी कहाँ जा रही है, सॉफ्टवेयर उसकी वो पूरी वर्किंग करते हैं।
इसी तरह से आईटी की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आईटी आपको लाभाना बहुत से मामलों में हेल्प करती है। और आजकल दुनिया का वो टाइम आ गया है कि आप कि आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन रिसोर्सेज माइनस होती जा रही है और आईटी के रिसोर्सेज जो वो ऐड होते जा रही है। कोशिश हमारी होगी कि जो भी हमारे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो भी सिस्टम्स आ रहे हैं, हम उसको रजिस्टर करें, क्लियर करें, उसका डैशबोर्ड हमारे पास स्टैब्लिश हो। और कोशिश हमारी हो कि हमारे पास इनोवेशन ऐसी हो जिसकी एक्सेस जनरल पब्लिक को हो, ताकि पता चले कि वैसे भी आपको 2013 का एक्ट आया है प्रोफेशन में, इससे नथिंग इज पब्लिश, नथिंग इज सीक्रेट। सो व्हाटएवर देयर इन द गवर्नमेंट, जो भी हुकूमत में है, वो चीज आम बात से सबको मालूम है। Part of the civil society, we are ready to coordinate with all the facts. आप हमें मौका दें, हमारे साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करें। हम लोग अपना पॉजिटिव रोल प्ले करने को तैयार है हर दिन। जैसे मैंने आपसे कहा वो प्रपोजल 3 साल से सब ये मीटिंग खत्म होती है, चाहे पे हम लोग और कुछ बात कर रहे हैं। जी आप सर, सोहेल खान नाम है मेरा, समा डिजिटल से ताल्लुक़ है और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड 2014 में बना। बिल्कुल। और सिंध के 29 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तकरीबन 4-5 साल में पूरे तमाम डिस्ट्रिक्ट, तो क्या कराची को भी कवर नहीं कर पाया, इसकी क्या वजह है? और दूसरा, अभी आपने कहा कि तकरीबन सालों का बैकलॉग है, 16 लाख टन के करीब, तो क्या इससे पहले सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम नहीं कर रहा था शायद? देखिए जी, इसका जवाब मैं आपको दूंगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का वजूद है 2014, ठीक है। 10 फरवरी 14 को ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हुआ और 7 मार्च 14 को उसकी गवर्नेंस असेंबली की हसर थी, ठीक है, जिसकी आप इजाज़त होते हैं आम लफ्ज़ों में उसी जात के लिए वजूद है। कोई भी जो प्रोजेक्ट आता है, अब ये पहला डेवलपमेंट थी जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का इस्तेमाल किया। इससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें ज़रा इरशाद फरमाना चाहूँगा ताकि थोड़ी सी आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी हो जाए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वजूद में आया जनाब, इससे कबल कि हम इसको चीज़ को डिस्कस करें, थोड़ा सा आपको बता दूँ कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से पहले आपकी म्यूनसिपैलिटी थी, KMC का ठेकेदार से काम करते। कराची में तकरीबन हमें मिला के 17 एजेंसीज काम करती, ठीक है, या मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। कराची के पूरे इलाके का सिर्फ 35% मेरे पास है जो कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। इनिशियली हमने 4 डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया था, इसके बाद हमारा प्रॉब्लम हुआ वेस्ट में उस चाइनीज़ फर्म से जिसने अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया, तो फाइनली उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास 3 डिस्ट्रिक्ट है, हार्डली मेरे पास पूरे कराची का 35% है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिस इलाके को डील कर रही है वो है 15%, ठीक है। जो आपकी DMCs हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, जिनका मुझसे मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो तकरीबन 35% है। इसके बाद तकरीबन 2% वो इलाका है जो पाकिस्तान रेलवे के पास है, ठीक है जी। लाइकवाइज आपका KBT है जो कि 2% है। सिविल एविएशन का भी आपका एक इलाका था। पाकिस्तान जो है पोर्ट कासिम अथॉरिटी है, 3% उसके पास है, ठीक है जी। KMC 5% को देख रहे हैं। कराची एज फार एज द जुरिसडिक्शन कंसर्न, जहाँ तक इसकी जुरिसडिक्शन का ताल्लुक है, वो बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ा और उसमें से 35% का इलाके से हम काम करते हैं। पहली अक्सर ऐसा होता है कि हम जाते हैं साउथ इंडिया के जगहों में, हम कहते हैं ये रोड हमारी है, उसके साथ वाली रोड जो पाकिस्तान रेलवे की है, ये रोड हमारी है, ये मिलिट्री कंट्रोलमेंट की रोड है, मैं अपनी कंट्रोल की रोड को साफ कर दूंगा, लेकिन उसको साफ करने का मैं मजाज नहीं। हाँ, ये ज़रूर बात है कि इस चीज़ को बेहतर इंश्योर करने के लिए हम उनके साथ एक कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म करते हैं। हम उनके साथ कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये आपकी जगह है, हम उनको पॉइंट आउट करते हैं कि उधर आपकी ये चीज़ है, आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है, आपके ट्रक्स निकलते हैं, नए ट्रक जाते हैं, कुछ ऐसा अगर पेट्रोल आगे पीछे हो जाता है तो उस पर स्वीपिंग होती है, हमला आना है, ये आपकी जिम्मेदारी, आप इस जिम्मेदारी को दी, ठीक है। पहली बात तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट जरूर हुआ, लेकिन कराची में ही सॉलिड
वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो पूरा उसका इस्तेकाम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप किसी ऐसी डेवलपमेंट का आगाज़ करते हैं, हमेशा उसको पायलट फेज में स्टार्ट किया। पायलटिंग फेज यही होती है कि अभी हम स्टार्ट करेंगे इसका इस्तेकाम तो शायद पूरे सूबे में, लेकिन इसको पायलट फेज में स्टार्ट करेंगे कराची से, टू एक्सपेरिमेंट टू सी कि इस तजर्बे का नतीजा क्या आता है। आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें आपकी प्रॉपर होगी तो फिर आप उसके स्केल को बढ़ाते हैं, उसको स्केल अप करते हैं। आप समझ लेंगे उसको बने में 14 में आया, लेकिन 14 में आने के बाद सिर्फ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हुआ है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होने में, इदारा बनने में, इदारे की ह्यूमन रिसोर्स आने में, इदारे की फाइनेंसेस आने में, इदारे का चीज़ों को टेंडर करके लोगों को हायर करने में टाइम लगता है। तो टेक्निकली तो आप 16 में जाके कोई आगे पीछे जो है सॉर्ट ऑफ बोर्ड हुआ है, इसको इस तरह से इसकी पैदाइश को एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो 4 साल हो गए होंगे, लेकिन फंक्शनल में उसको ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ। लेकिन आज भी अगर आप जाएँ तो जो डिस्ट्रिक्ट जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रहा है, आप उसकी टारगेट देखेंगे ईस्ट के अंदर, साउथ के अंदर, बिट ऑफ बरीर के अंदर, तो आपको रिलेटिवली काफ़ी नजर है, क्योंकि वहाँ पे आप साउथ में जाएंगे तो आपको शहरा फैसल पे आपको झाड़ू देने वाली मशीन नजर आएगी। आपने कभी देखा होगा सोनोग्राफी में उसको मैकेनिकल स्वीपर कह रहे हैं, वो काम कर रहा होगा। इसी तरह आपके कॉम्पैक्टर हैं जो काम करते हैं, चावल काम करते हैं, आपको प्राइस है। अभी मैंने ईस्ट में अभी चंद दिनों पहले तकरीबन कोई 260 लीटर के जो है वो डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट किया। उससे पहले मैंने साउथ में 175 जो है वो डस्टबिन की पूरी सिर्फ है। मिनिस्टर जनाब डॉक्टर राव साहब भी थे, नासिर हुसैन साहब भी थे, सैयद साहब भी थे उसके अंदर, तमाम जी को बाकी लोग हमारे अंदर डिपार्टमेंट था। जो डस्टबिन देते हैं सेंसर लगा होता है, सॉफ्टवेयर में चेक होता है कि उससे वो उठा पिक हुआ या नहीं हुआ। जो वेट ब्रिज पे खड़ा होता है लेफ्ट साइड पे ट्रक, उसकी पूरी कंप्यूटर जनरेटेड रिसीट होती है, कब आया, किस दिन आया, किस टाइम पे आया, उसका नंबर क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, कितना टनेज थी, उसकी रिसीट जनरेट। दिस इज ऑटोमेटिक। तो इस तरह हर इदारे का एक फेज होता है, और आते साथ ही वो आया, वो छा गया। ये लफ्ज़ों में कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हर चीज़ में छाने में, उसको प्रॉस्पर करने में, ग्रो करने में हमारे इलाके का नाम ठीक है सर, आपके पास 3 असला मौजूद हैं, तो वो क्या वजूहत है कि हुकूमत कराची आपको क्यों नहीं दे रही? जी ये पॉलिसी सवाल है, इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता कि आई एम नॉट अ डिसीजन। जी सप्लीमेंट बाद में होता है जी। हाजा मेरा नाम हाजा मजहर है जी, और मैं इंदौर की CEO हूँ, और मुझे ज़्यादातर अपने पाकिस्तान और हमारे कराची से बहुत मोहब्बत है, और मैं चाहती हूँ कि क्योंकि हम बाहर मुल्कों में जाते हैं तो हम एज़ पर कंपेयर अपने मुल्क को उसके साथ मिलाएं, अपने शहर को मिलाएं, तो हम बहुत 100 साल पुरानी मतलब पीछे चले जाते हैं। जैसे अभी मैं आप यहाँ पे आई हूँ तो मुझे आपसे जो अवेयरनेस मिली उसमें काफ़ी चीज़ें जो हमें ज़रूरत है हम दूसरों को पहुँचाने की। आपने ये तो बताया कि ये औरतें जो है वो अपना गार्बेज जो है वो सामान अपना जो है वो ले लेती हैं, मतलब शीशा या गत्ता वगैरह अलग अलग कर लेती हैं। ये तो अवेयरनेस औरतों को भी है, और बच्चों को ये भी अवेयरनेस है कि किस तरह स्कूलों में और माँ बाप सिखाते कि कचरा नहीं करना चाहिए। मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो कराची में कचरा जमा हुआ है ये क्या 1 साल का जमा हुआ है, 2 साल का जमा हुआ है, या ये बच्चों ने किया है, या किसी फैमिली ने किया है, या किसने किया है ये जमा, और क्यों जमा हुआ है, और ये कितने सालों से पड़ा हुआ है। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, या इदारे इसके रिस्पॉन्सिबल इदारे उस पर क्या काम कर रहे हैं, और ये जो मॉनिटरिंग है वो क्यों नहीं हो रही है, या अवेयरनेस है अपने डिपार्टमेंट के लोगों को और उनके ऊपर चेकिंग है, ये क्यों नहीं है। लेक ऑफ द अवेयरनेस मॉनिटरिंग वगैरह ये आम घरों के लिए नहीं है, ये डिपार्टमेंट के लिए, तो क्यों कम है? देखिए जी, वेरी परसेंट ऑफ द ये जो कचरा जमा हुआ है ना तो ये दिनों का है, ना ये हफ्तों का है, ना ये महीनों का है, ये कचरा सालों का है। अब आपका सवाल कौन क्रिएट कर रहा है? कचरा रिहायशी क्रिएट करते हैं, वो चाहे वो बिल्डर। सुन लीजिए, आपने सवाल किया, मेरे जवाब भी दे दीजिए, मैं समझाता हूँ आपको। बिल्कुल आपको सादा सही जवाब। बिल्डिंगें बनती टूटती हैं, मलबा निकलता है,
शहर के रिहायशी होते हैं, हमेशा बिजनेसमैन होते हैं, बिल्डर होते हैं। जो रेस्टोरेंट बने हैं वहाँ वो खाना खाने जाते हैं, हम भी खाने आते हैं, आप भी खाने आते हैं, कचरा वहाँ से जनरेट होता है। जो इंडस्ट्री बनती है, इंडस्ट्री का फुसला होता है, चीज़ें होती है, वो वहाँ से जनरेट होता है। हम घरों में, मेरे घर में चीज़ें आती होंगी, बच्चे खाते होंगे, बर्गर खा लिया, ये खा लिया करते हम, वो क्रिएट होता है। आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स आती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है, मुख्तलिफ बॉटल्स में आती है, आप पेप्सी पीते हैं, प्लास्टिक या प्लास्टिक क्रिएट होता है, ठीक है जी। उसके अलावा डिपार्टमेंट साइड है, आपकी जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट, जो सुपर चीज, जो सुपर आपका निकलता है, सारे के सारे सीवरेज चीज़ें हैं, कचरे के जो जनरेटर्स हैं उसमें हम सब शामिल हैं। आप, मैं, तो जाहिर सी बात है जो भी हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मेरे पास ये पेन है, टूट के मेरे ये अगर बर्गिन में जाएगा तो लामाना ये मेरे पास से क्रिएट हुआ है, इसमें बनाने वाला कसूर नहीं है, उसने बनाया, मैंने इस्तेमाल किया, खराब हो गया, मैंने इसको फेंक दिया। जो जितनी भी इजनास हैं या शक्लें या सूरतें हैं वो लामाला तो बाहर निकल के आता है। अब कचरा होना दैट इज नॉट एन इशू। इशू है कि उस कचरे को आप मैनेज किस तरह से करते हैं, किस तरह से उसको उठाते हैं। अभी जो कचरा उठा रहे हैं तो हमारा हजारों टन निकला है, किसमें से, नालों में से। नाले के अंदर मलबा डालने का कोई तो नहीं बनता, लेकिन नालों से मलबे निकले। अब कोई ये सवाल करे जनाब किसने डाला है, हम सब इस शहर के शहरी, उसमें बिल्डर भी हो सकता है, उसमें मेरे घर की कोई चीज़ टूटी, अगर मैंने प्रॉपर मैनेज नहीं किया। अब लैंडफिल साइट पर उसको जाना चाहिए, लेकिन जरा माना जब लैंडफिल साइट वहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, जो मैंने जब मेरी पोस्टिंग तो मैंने देखी, तो आप लोगों ने उसको कहाँ से देखा होगा, और आप देख नहीं सकते। उसकी जरूरत होती है कि आप कोई ऐसा पॉइंट स्पॉट रखें जहाँ पर कोई चीज़ें वहाँ पर डंप हो जाए। तो कचरा तो आपका रोज तकरीबन 12 से 14,000 टन तो हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअली 16 से 18,000 टन रोज कचरा इस कराची में जनरेट हो रहा है। उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, बट इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। अब इशू ये कि आप उस कचरे को कितनी मैनेज करने की सलाहियत रखते हैं, ये यकीनन गवर्नमेंट का काम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो भी गार्बेज जनरेट होगा उसको प्रॉपर कलेक्ट करना, उसको कचरा प्रोड्यूस उठाना, उसको GTS गार्बेज ट्रांसपोर्टेशन पे मुंतकिल करना, गार्बेज ट्रांसपोर्ट स्टेशन से उठे उसको उठा कर लैंडफिल साइड में रहना, ये यकीनन गवर्नमेंट का काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो कचरा जमा है बैकलॉग, वो 16,000 टन का है, वो बहुत सालों का बैकलॉग, इसको हल होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो मुनासिब बात है। जो जितनी देर से है उसको उतनी ही देर से निकल चाहिए। तारक जी, तारक साहब तारक है, बहुत मेरा नाम सर जी। मैं PCL में होता हूँ, यूनियन में होता हूँ, और अनलकीली मैं BMC वेस्ट का पीपल्स वर्कर मैनेजमेंट के जनरल सेक्रेटरी। सही है सर जी। बात यहाँ पर हो रही थी, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ की, मतलब जर्मनी की, कनाडा की, XYZ बाहर। मैं आउटसाइड ऑफ कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। भी उसकी मिसाल दी जाए। हाँ, मिसाल मैं उसकी मिसाल दे नहीं रहा हूँ, तो बहुत आगे हमसे। मैं सिंपल ही मिसाल दे रहा हूँ, लाहौर की, फैसलाबाद की, इस्लामाबाद की, या नॉर्दर्न एरियाज की, क्योंकि हमारा आना जाना वहाँ पे मुसलसल होता रहता है अपने कामों की। लेकिन सर बड़ा अफसोस होता है कि हम दूसरे सूबे में जाते हैं, मतलब पंजाब को ही आप ले लें, जब पंजाब से कराची दूर की बात है, जैसे ही हम एंट्री लेते हैं सिंध के अंदर और थोड़ा सा आगे आते हैं, पन्नू आकिल तक पहुँचते हैं, तो पन्नू आकिल से पहले ही हमें रोड पे कचरा जलता हुआ दिखाई देता है। फिर समझ लो हमारा कचरा शुरू हो गया समंदर तक, कराची इब्राहिम हैदरी तक, हाँ इब्राहिम समंदर तक कचरा ही कचरा है। और जब हम बलूचिस्तान निकल जाते हैं, अब चौकी से आगे, फिर हम कचरा नहीं देखते, यही प्रॉब्लम है। वो पसमानदा सूबा है हालांकि बलूचिस्तान। कहने का मकसद ये है कि सर आखिर हमारे सूबे में ऐसा क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या यही सूबा कचरा दान है? अच्छा, एक और मसला सोलर वेस्ट के हवाले से। सोलर वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर में ही साउथ है, आप जानते हो,
لیکن سر ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارا رہائش بھی وہیں پر ہے، تو وہاں پر جو ڈمپنگ سائٹ ہے اس وقت لیاری ایکسپریس پہ بالکل ساتھ دوبیگا پل کے ساتھ سر وہ بالکل کراچی کے بیچ ہے، چاروں طرف وہاں پر رہائشی لوگ ہیں، ہم خود وہاں پہ رہتے ہیں، تو وہاں پر جب ڈمپنگ کیا جاتا ہے مسلسل، اور خاص کر عید کے دن پہ ابھی جو دن آتے ہیں اور صبح کے وقت جب وہ پھینکتے ہیں جس طریقے سے کچرا، تو آپ یقین کریں اس کی بدبو سے ہم کافی دور ہیں، 500 میٹر آدھا کلومیٹر دور رہتے ہیں، نزدیک بھی نہیں، لیکن اس کی بدبو سے نیند نہیں آتی۔ تو کیا سر یہ جگہ بھی مناسب ہے کراچی کے دل میں کچرا کو پھینک کے پھر دوبارہ اٹھا کے لے جایا جائے؟ ایک سیکنڈ یہ سر، دوسری بات یہ کہ ویسٹ میں جس طرح چل رہا تھا معاملات، اس میں بہت سارے پروگرام تھے، مجھے معلوم ہے، ادھر لوگ آپ نے چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرا جو ملازمین ہیں ساؤتھ میں اور ایسٹ میں، اس میں سولر ویسٹ مینجمنٹ نے شاید ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں تو 25% تنخواہ میں اضافہ کیا جائے، تو 25% تنخواہ جو ہمارے سینیٹری ورکر ہیں، ہمارے ڈرائیورز ہیں یا ہمارے دوسرے ملازمین جو شفٹ ہو گئے تھے آپ کے پاس، تو ان کی تنخواہوں کو بھی ابھی تک اضافہ نہیں ہوا۔ کیا چلے گا تو ہم آپ سب جانتے ہیں، اور آپ کی باتیں بھی ہم نے سن لی تقریباً، آپ کی مجبوریاں بھی، آپ کی اچھائیاں بھی، سب کچھ ٹھیک نہیں کی۔ دیکھیے جی میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں، آپ لیٹ آئے ہیں انفارچونیٹلی، اگر آپ پہلے آئے ہوتے تو جو بھی کاٹ کے مسئلے کو میں مکمل مختصر جواب دے چکا ہوں، اس لیے یقیناً میں نے ایک بات کہی تھی کہ جناب آپ کے جی ٹی ایس جتنے بھی ہیں وہ بیچ آبادی میں نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا جواب دے چکا بالکل مناسب نہیں ہے، اور لیکن کچھ جگہوں پہ آپ کے پاس کیونکہ لینڈ کے ایشو بھی آتے ہیں، مسئلے مسائل آتے ہیں۔ آپ نے جی ٹی ایس کی بات کی، دوبیگھاٹ کی، دوبیگھاٹ کو تھوڑا اور زیادہ مزید بڑھا دوں آپ کی انفارمیشن کے لیے، تقریباً کوئی 4 سے 4.5 ایکڑ کی زمین ہے، اس پہ ایک نیازی صاحب ہے، یہ دوبیگھاٹ ہے، دوبیگھاٹ کے ساتھ مسجد ہے، مسجد سے آگے 100 فٹ کا علاقہ ہے، اس کے بعد وہاں پہ پورا ڈمپ ہے، تو وہاں پہ بعض جگہ ہمیں اس پہ ڈمپ کا ایشو بھی آتا ہے۔ ریسنٹلی میں نے اس کو ایڈیشنل آئی جی کو لیٹر بھی لکھا اس کے اوپر کہ ہمارے پاس کچھ مسئلے مسائل ہیں جہاں پہ ڈمپنگ کا ایشو ہے، کرنٹ شہر میں نہیں چاہیے۔ دوسری بات آپ نے کی 25% کی، وہ بھی آپ کے لیے اطلاع عرض کر دوں، 25% یہ تھا کہ جتنے بھی امپلائیز چائنیز کمپنی کے ساتھ کام کریں گے اس کے کانٹریکشن ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ کو 25% ایڈ آن ملے گی آن دا بیسس آف پرفارمنس۔ ابھی میں کسی قسم کے آرگومنٹ میں بحث میں نہیں آؤں گا، صرف آپ کو سادہ بتاؤں گا۔ جب میں تشریف لایا اور میں نے اپنے اسٹاف سے پوچھا حضور کہ آپ کی جو 25% پرفارمنس ہے تو یقیناً اس پرفارمنس کا کوئی نہ کوئی بینچ مارک ہوگا۔ آپ کہتے ہیں نا، بچے بھی کہتے ہیں بیٹا تم اگر 80 نمبر لے کے آؤ گے تو میں تمہیں یہ چیز دوں گا، اس کے لیے ایک بینچ مارک رکھا کہ آپ کی پرسنٹیج 80 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں نے جناب آپ کو جواب دینا چاہوں گا اس پہ، جب میں نے اپنے اسٹاف سے پوچھا ایگزیکٹو سے مجھے بتائیے پرفارمنس ہے کیا، سر پرفارمنس تو اٹینڈنس ہے، جس کی اٹینڈنس ہوتی ہے ہم اس کو 25 دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کے سب کے جاؤں واری جاؤں کہ جناب کے اٹینڈنس کی بیس پہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 25% اسٹاف کو دیا جا رہا ہے، جو میرے مطابق وہ صرف کلب ہے، نتھی ہے کس چیز کے کہ آپ کی اگر پرفارمنس اچھی ہے تو آپ کو کمپنی، تو آپ کو گورنمنٹ 25% آپ کی تنخواہ کا اضافی دیں گے۔ اگر میری تنخواہ اگر فرض کریں میری بیسک اگر 15,000 روپے ہے یا 20,000 روپے ہے، جتنی بھی ہے، تو اس پہ اس کا 25%، اگر 20,000 ہے تو اس کا 5,000 اس کا ایڈ آن ہو جائے گا، وہ ہے پرفارمنس بیس، ٹھیک ہے جی۔ لیکن وہ جب میں نے پوچھا تو کہتے ہیں کہ ہم روک نہیں سکتے، روکیں گے تو آپ کو پتا ہے سر ایکس انجمن تو وائی انجمن تو زی انجمن وہ دے دیا جاتا ہے۔ چلیے جی نیکسٹ۔ نہیں تمہارے بہت سوال ہو گئے ہیں، نہیں چانس کچھ سب نہیں ہوگا، آپ کو دیں گے، سر اس کو ای میل دے دیں، ہاں یہ سارے فارغ ہو جائے پھر آپ اس سے بات کریں گے۔ ہاں مجھے یاد ہے آپ آئیے میڈم بہت دور سے۔ السلام علیکم سر، آپ نے بات کی کہ یورپ میں کچرا نہیں ہوتا، جی یورپ میں ماسکیں نہیں ہوتی، یورپ میں کچرا پولیاں ہیں، یورپ میں 3 ڈبے والے نہیں ہوتے، یورپ کے اندر یہ پلوں کے نیچے جو کباڑ ہیں وہ نہیں ہوتے۔ یہ بھلا اور معاشروں کا کہ جو کہ 3 فیٹ
शीशा भी और कांच भी उठा के ले जाती है, उनका भरा है। फिर उसके बाद आगे 3 डब्बे वाले आते हैं, रेडी पर वो ले जाते हैं, फिर वो सारा कबाड़ थाने में चला जाता है, कबाड़ी के पास वो जाया नहीं करते। मेरा सवाल ये है, बाकी कचरा कौन सा बचता है कि जो आप टनों के हिसाब से रोज उठाते हैं? वो तो बिक जाता है कचरा साहब। आप तशरीफ रखें, मैं आपको बहुत जी तहम्मुल से बयान करूं। आपका सवाल होता है। देखिए, ये बात सुनिए, नहीं लेट मी आंसर दिस। प्लास्टिक की थैली कभी आपने देखी है? आपके नाले पॉलीथीन बैग से भरे हुए, ठीक है जी। अब कचरा हर नौयत का है, ठीक है जी। और आपके पास कचरा, जो मैं कहता हूँ कि यूरोप का क्या मैंने आपको फर्क बताया है, उसका मतलब ये नहीं किसी ने अगर बाजी ने बेच बना के बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि ये काम रिसाइकिल होना है, उससे भी फाइनली कोई चीज़ बन के बिक रही है। अगर मेरे अपना घर का अगर मैं उसको, एक ज़माने में आपको याद होगा कि भूसी टुकड़े वाला हुआ करता था, अभी भी है ना जी। वो आता था, कलेक्ट करता था, उसको दोबारा रिसाइकिल करते थे। ये सब प्लास्टिक वाला चीज़ है। मैंने आपको बालों की छोटी सी मिसाल दी थी ना, वो सभी चीज़ें इस्तेमाल हो गई, प्लास्टिक भी है, शीशा भी है, और फिर आपकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि लोग कचरे में सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बहुत से सॉर्ट आउट नहीं करते हैं। मैं पूरे कराची का आजकल मेरे को ख्वाब में भी कचरा नजर आता है, रोडों में मुझे कचरा नजर आता है, कितने रात निकला हुआ। आपके यासीनाबाद में मैं आपको सेंट्रल में ले जाता हूँ, जो वहाँ पे एक आपका सिराज दौलत का कचरा कुंडी है, एक यासीनाबाद की कचरा कुंडी है, ठीक है, एक 4K स्टॉप की कचरा कुंडी है, ठीक है जी। एक आपकी अजहर शाह स्टेडियम जिसमें क्रिकेट मैच होते हैं, डॉक्टर शाह, उसके पीछे जब वहाँ से कचरा लेके ट्राईसाइकिल वाले आते हैं तो बच्चे वो थैली लेके आते हैं। बहुत सारी बातें ऐसे होती है, बाज़ इलाकों में इवन हमारे घर वाले भी बाज़ जगह उसको कचरे को चीज़ों को निकाल नहीं रहे। वो ज़माने भी पुराने गए, जब हमारी वालदा, मुझे याद है, बोतलें रखी होती थी, उनका आता था, उसको दिया, अजी बोतल कोई 4 आने की, 8 आने की, फलाने की हो करती थी। अभी जो आपके जो स्कैवेंजर है, इसको स्क्वेंजिंग कहते हैं, हमारे बच्चे जो के काम करें, बेसिकली रहमत भी है कि वो घर वालों से कलेक्ट करके लेके आते हैं, ट्राईसाइकिल पे आते हैं, ये बड़े होते हैं, फिर उसमें से वो चुनाव कर देते हैं। अभी भी उसके अंदर वैल्यूएबल्स मौजूद होते हैं, खत्म नहीं होता। फिर आपका साउथ की बात करेंगे, बैठे हुए साउथ का, साउथ के अंदर जब उन्हें लिफ्टिंग की तो साउथ में कचरा तो आपको कुछ नहीं मिला क्योंकि कंपनी वहाँ काम कर रही है, लेकिन वहाँ पे झाड़ियाँ और वहाँ पे मलबा कचरे वाली गाड़ी वाला नहीं उठाता, क्योंकि वो जो चाइनीज कंपनी काम कर रही है उसके मैंडेट में कचरा उठाना नहीं आपको बता। इसी तरह आपका मलबा अक्रॉस द बोर्ड पूरे कराची में फैला है। आपके ये दरख्त हो गए कटे हुए, कटिंग्स होती, झाड़ी फैली हुई है, आपकी बहुत सारी चीजें जो कि लोग वैल्यूएबल लिफ्ट नहीं हो पाते, तो फाइनली होता है कचरा टुकड़ियों में, और वो जाता है, भरता है और फाइनली आगे जाते हैं। उसकी नौयत गप की भी हो सकती है, स्लज की भी हो सकती है, भैंस कॉलोनी से आपको डंग मिलता है, कहीं से आपको फैक्ट्री का वेस्ट मिलता है, कहीं से आपको हॉस्पिटल वेस्ट मिलता है। हॉस्पिटल वेस्ट की जो सुइयां आती है जाके लगाते नहीं, धोते नहीं है, बाज उसकी सुनिए